Hello everyone, my name is Pratik Mathur. I am working as an assistant professor in Computer Science Department in NIT College Alwar. Today I will be discussing on a very important topic in artificial intelligence field, that is game playing. So let's begin. Here are the contents: introduction to artificial intelligence, game playing by using artificial intelligence, water jug problem, then terminology used in water jug problem, procedure and solution, and then conclusion. So let's begin our topic with introduction to artificial intelligence. जैसे कि मैंने बताया कि गेम प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उससे पहले गेम प्लेइंग जानने से पहले हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिकली होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ ए वाइड रेंजिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, and it is an approach to make a computer to think in the same way human thinks. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम इस तरीके की मशीनें बनाते हैं जो कि ह्यूमन माइंड की तरह सोच सकती हैं या ह्यूमन माइंड की तरह काम कर सकती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम उन फैक्ट्स को एक मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं। जो फैक्ट्स हम इंसर्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो मशीन है या कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। So artificial intelligence exists when a machine can have human-based skills such as learning, reasoning, and solving problems. Here are the goals of artificial intelligence: replicate human intelligence, solve knowledge-intensive tasks, an intelligent connection of perception and action, building a machine which can perform tasks that require human intelligence. बेसिक यूज़ या बेसिक गोल हम बोले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो इतना ही है कि एक ऐसी मशीन बनाए जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. First of the advantages of AI is high accuracy. AI machines or systems are prone to less errors and high accuracy as it takes decisions as per pre-experience और information. जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो मशीन्स होती हैं उनमें हम ह्यूमन ब्रेन्स के थ्रू जो फैक्ट्स होते हैं वो हम फीड कराते हैं, तो क्योंकि हम वही फैक्ट फीड कराएंगे जो कि एक्यूरेट होंगे, तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी होगी मशीन की वो हाई होती है. Second, high speed. AI system can be of very high speed and fast decision making. Because of that, AI systems can beat a chess champion in a chess game. Third, high reliability. AI machines are highly reliable and can perform the same action multiple times with high accuracy. Useful for risky areas. AI machines can be helpful or useful in situations such as defusing a bomb, exploring the ocean floor, where to employ a human can be risky. मतलब जिन जगहों पे हम एक ह्यूमन को भेज के रिस्क पैदा कर सकते हैं उससे अच्छा हम AI मशीन्स इस तरीके की क्रिएट करते हैं जो कि वो काम कर सकें, तो जो रिस्क होगा वो बहुत कम होता है. डिजिटल असिस्टेंट. AI can be very useful to provide digital assistant to the user, such as an AI technology is currently used by various e-commerce websites to show the products as per customer requirements. And the last one, useful as a public utility. AI can be very useful for public utilities such as a self-driving car, which can make our journeys safer and hassle-free. Now, some disadvantages of AI. High cost. The hardware and software requirement of AI is very costly as it requires lot of maintenance to meet current world requirements. Can't think out of the box. Even we are making smarter machines with AI, but still they cannot work out of the box as the robot will only do that work for which they are trained or programmed. No original creativity. As humans are so creative and can imagine some new ideas, but still AI machines cannot beat this power of human intelligence and cannot be creative and imaginative. Now moving on to the next slide, we have game playing in artificial intelligence, which is our main topic. Game playing is an important domain of artificial intelligence. Games don't require much knowledge. The only knowledge we need to provide is the rules. बेसिकली AI बेस्ड गेम वो होते हैं जिसमें हम दो प्लेयर्स या सिंगल प्लेयर वाले गेम को यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ चेस हो गया या मिनी मैक्स, अल्फा बीटा, प्यूर्निंग,
वाटर जग प्रॉब्लम, 8 क्वीन प्रॉब्लम, इस तरीके के गेम्स होते हैं जो वो हम एआई के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और भी गेम्स होते हैं, बट फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो इन्हीं तरीके के गेम को डिस्कस करेंगे। बोथ प्लेयर्स ट्राई टू विन द गेम, सो बोथ ऑफ देम ट्राई टू मेक द बेस्ट पॉसिबल मूव। सर्चिंग टेक्निक लाइक BFS आर नॉट एक्यूरेट फॉर दिस एज द ब्रांचिंग फैक्टर इज़ वेरी हाई। सो हम अलग अलग प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे गेम प्लेइंग के लिए। नाउ द टॉपिक वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है, इसमें हमको दो तरीके के जग प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी हमें फिक्स कैपेसिटी दी होती है। जब हमें उनकी कैपेसिटी पता होती है लेकिन उन पर इस तरह का कोई मार्क नहीं होता जिससे हम ये नाप सकें कि उनमें कितना पानी भरा हुआ है या वो कितना खाली है। हम सिर्फ उनको इतना ही नाप सकते हैं जब वो फुल होंगे, क्योंकि हमें उनकी कैपेसिटी पता है। तो हमें इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं कि हमें ये दो तरीके के जग दिए होंगे, उनकी कैपेसिटी हमें पता होगी, फिर हमसे बोला जाएगा कि उनमें से किसी भी एक जग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। इसमें दो तरीके के वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, एक तो प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टेट स्पेस सर्च। प्रोडक्शन रूल in this problem are basically some combination of transferring the water which can be helpful to get the target or to achieve the goal। जो वाटर जग प्रॉब्लम में प्रोडक्शन रूल होंगे वो इस तरीके के होंगे कि हम एक जग से दूसरे जग में कितना पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन होगा। स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट, स्टार्ट स्टेट, गोल स्टेट, एक्शंस और रूल विच इज़ यूज्ड। हमारा अगला टॉपिक आता है वाटर जग प्रॉब्लम एग्जाम्पल। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें दो तरीके के जग दिए हुए हैं, एक 4 लीटर कैपेसिटी का और एक 3 लीटर कैपेसिटी का। दोनों ही जग पे कोई मार्कर नहीं जिससे हम उनका ये पता लगा सके कि उनमें कितना पानी है, लेकिन हमें उनकी कैपेसिटी पता है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है वी नीड टू फिल द 4 लीटर जग विथ 2 लीटर ऑफ वाटर एंड द अदर जग शुड रिमेन एम्प्टी। इसका मतलब कि जो हमारे पास 4 लीटर का जग है उसमें 2 लीटर पानी होना चाहिए और जो 3 लीटर का जग है वो खाली होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट स्टेट हमें दी हुई है जब हमारे जो दोनों जगह हैं वो एम्प्टी हैं, मतलब खाली हैं। तो अभी किस तरीके के करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्शन रूल्स बनाए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। पहले स्टेप में मैंने दिखाया है एक प्रोसेस है XY, मतलब यहाँ पे X जो है वो डिनोट कर रहा है 4 लीटर जग की कैपेसिटी या 4 लीटर जग में कितना अमाउंट वाटर है, और Y जो डिनोट कर रहा है वो ये कर रहा है कि 3 लीटर जग में कितना वाटर है। मतलब X जो डिनोट कर रहा है वो 4 लीटर जग में कितना वाटर है डिनोट कर रहा है, और जो Y है वो 3 लीटर जग में कितना वाटर है वो डिनोट कर रहा है। तो पहले में X कोई अमाउंट वाटर है 4 लीटर वाले जग में और Y 3 लीटर वाले जग में कोई अमाउंट वाटर है। उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकल रहा है 4, मतलब जो 4 लीटर वाला जग है उसमें 4 लीटर पानी है और जो 3 लीटर वाला जग है उसमें Y लीटर पानी ही है, जो कि पहले से Y लीटर पानी था। तो इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ X इज़ लेस देन 4, अगर 4 लीटर वाले जग में जो पानी है वो 4 लीटर से कम है तो हम क्या कर रहे हैं, जो 4 लीटर का जग है उसे पूरा भर रहे हैं। एज यू कैन सी इन कमेंट, फिल 4 लीटर जग कम्प्लीटली। सिमिलरली इन सेकेंड स्टेप वी कैन सी X, Y करंट पोजीशन है हमारे पास पानी की दोनों जग में। X 4 लीटर वाले जग की पोजीशन है और Y 3 लीटर वाले जग की पोजीशन है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं X, 3 में। मतलब कि जो 4 लीटर वाला जग है उसमें हमने उतना ही पानी छोड़ रखा है, जबकि जो 3 लीटर वाला जग है उसको हम पूरा 3 लीटर भर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कब होगा, जब y की वैल्यू जो है वो 3 से कम होगी। एज यू कैन सी इन कंडीशन सेकेंड, इफ y इज लेस देन 3 हेयर। तो कमेंट में क्या आ रहा है, फिल 3 लीटर जग कम्प्लीटली, 3 लीटर जग को पूरा भर दिया। ऐसे ही थर्ड में X, Y से बन रहा है X माइनस D, Y, मतलब X कुछ वाटर है Y कुछ वाटर है, X 4 लीटर वाले जग में Y 3 लीटर वाले जग में, X माइनस D मतलब X में से हमने कुछ पानी निकाल दिया। ये कब होगा, जब X की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉर सम वाटर फ्रॉम 4 लीटर जग, 4 लीटर वाले जग में से कुछ पानी निकाल रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ है। ऐसे ही फिफ्थ में देखें X, Y है हमारे पास, उसको हमने 0, Y बनाया, मतलब कि जो 4 लीटर वाले जग में X पानी था वो हमने फेंक दिया है या उसे खाली कर दिया है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इफ़ X इज़ ग्रेटर देन 0, अगर X 0 से ज़्यादा है तो ही ये पॉसिबल होगा।
सिमिलरली इन सिक्स्थ एक्स कोमा वाई वो हमारा बना रहा है एक्स कोमा ज़ीरो। एक्स कोमा ज़ीरो का मतलब हो रहा है कि जो हमारा 3 लीटर वाला जग है वो हम खाली कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन कमेंट एम्प्टी 3 लीटर जग। इसी तरीके से यहाँ पे हमने 12 प्रोडक्शन रूल क्रिएट किए हैं। ये प्रोडक्शन रूल वो सारे कॉम्बिनेशन हैं जो कि इस वाटर जग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे 4 और 3 लिया है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारे जग की कैपेसिटी है वो 4 और 3 है। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्व करने के लिए हमें करना है क्या, हमारे पास स्टार्ट स्टेट गिवन है 0 0, मतलब कि जो दोनों हमारी जगह हैं वो खाली हैं, एम्प्टी हैं, और हमें गोल स्टेट अचीव करनी है जिसमें 4 लीटर वाले जग में हमें 2 लीटर पानी चाहिए और जो 3 लीटर वाला जग है वो हमें खाली चाहिए। तो पहले स्टेप में आप जैसा कि देख रहे हैं 4 लीटर जग 0, 3 लीटर जग 0, प्रोडक्शन रूल इनिशियल स्टेट जो कि हमें गिवन है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमने देखा कि जो 3 लीटर वाला जग है वो हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया है और 3 लीटर वाला जग को कम्प्लीटली फिल किया है, 4 लीटर वाले जग को हमने नहीं छेड़ा है। ये आपका प्रोडक्शन रूल सेकंड है, आप पीछे इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये सेकंड प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रहे हैं, एक्स कोमा वाई है, मतलब उस वाले केस में 0,0 है और जो कन्वर्ट होने के बाद आ रहा है वो x,3 आ रहा है, मतलब कि 0,3, क्योंकि जो 4 लीटर जगह हम उसको छेड़ ही नहीं रहे हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो 3 लीटर वाले जग का पानी है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 4 लीटर वाले जग में, प्रोडक्शन रूल 9 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन रूल 9 में क्या हो रहा है, एक्स कोमा वाई से बना x + y, 0, मतलब कि जो 3 लीटर वाले जग में जितना पानी था वो हमने 4 लीटर वाले जग में ट्रांसफ़र कर दिया और जो 3 लीटर वाला जग है वो खाली कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने 3 लीटर वाले जग में से पानी निकाल के 4 लीटर वाले जग में खाली कर दिया और 3 लीटर वाला जग खाली हो गया। आगे फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि जो 3 लीटर वाला जग है हमने उसको फिर से फिल कर लिया है। ये वही आपके सेकेंड प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, प्रोडक्शन रूल आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, जो 3 लीटर वाले जग में पानी था वो हमने 4 लीटर वाले जग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्योंकि 4 लीटर वाले जग में पहले से 3 लीटर पानी तो है ही, तो जब हम 3 लीटर वाले जग में से उसमें पानी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कितना ट्रांसफ़र होगा, 1 लीटर। 1 लीटर ट्रांसफ़र होने के बाद 4 लीटर वाले जग की जो स्थिति होगी, जो कंडीशन होगी या सिचुएशन होगी, वो 4 लीटर कंप्लीट हो जाएगी और जो 3 लीटर वाला जग है उसमें से 1 लीटर पानी निकला है तो वो 2 लीटर शो करेगा। ये आपका प्रोडक्शन रूल 7 के अकॉर्डिंग हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, सिक्स्थ स्टेप में जो 4 लीटर वाले जग में पानी था 4 लीटर, वो हमने फेंक दिया या हमने एम्प्टी कर लिया 4 लीटर वाले जग को। यह आपके फिफ्थ प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हुआ। इसके बाद हमारी जो सिचुएशन हुई वो 4 लीटर जग में हमारे पास 0 लीटर पानी है, 3 लीटर जग में हमारे पास 2 लीटर पानी है। हमें करना क्या है, हमारी गोल स्टेट है we need to fill the 4 liter jug with 2 liter of water and 3 liter jug should remain empty. So what will we do, जो 2 लीटर पानी हमारे पास 3 लीटर जग में बचा है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे 4 लीटर वाले जग में। उससे होगा क्या, हमारी जो नई सिचुएशन आएगी वो आएगी 4 लीटर जग में 2 लीटर पानी हो जाएगा, 3 लीटर जग आपका एम्प्टी हो जाएगा। ये आपके 9th प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हुआ है और यही आपकी गोल स्टेट है। तो यही वाटर जग प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हमें इस प्रॉब्लम में 2 तरीके के जग दिए होंगे, हमें उनके प्रोडक्शन रूल्स बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्शन रूल इस तरीके के होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं पानी को एक जग से दूसरे जग में ट्रांसफ़र करने के, जग खाली करने का, वो सारे प्रोडक्शन रूल हमें बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम उन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए, देखते हुए कि हमारा कौन सा प्रोडक्शन रूल हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट स्टेट से और गोल स्टेट तक हमें जाना है। कंक्लूज़न में अभी जैसे स्टार्ट किया था हमने, तो हमने देखा था कि जो AI है, AI is an approach to make a computer to think in the same way human thinks, and game playing is an important domain of artificial intelligence. Games don't require much knowledge, the only knowledge we need to provide is the rules. प्रोडक्शन रूल्स जो हमने बनाए थे वो उस गेम्स के रिगार्डिंग वो रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम टारगेट या फिर गोल स्टेट अचीव कर सकते हैं। जैसे आप टिक टैक टो हो गया, इन सब, या चेस हो गया, या वाटर जग प्रॉब्लम हो गई, मिशनरी कैनिबल प्रॉब्लम भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है AI गेम प्लेइंग की। सो इन सब के लिए हमें वो रूल्स बनाने पड़ते हैं जिनके थ्रू हम अपना आउटपुट या गोल अचीव कर सकें। इसी तरीके से वाटर जग प्रॉब्लम इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ AI गेम प्लेइंग वेयर वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इन एनी जग आस्क्ड इन द क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमें 2 तरीके के जग दिए हुए थे, एक 4 लीटर का, एक 3 लीटर का।
हमें बोला गया था कि जो 4 लीटर वाला जग है तो उसमें हमें 2 लीटर पानी चाहिए और जो 3 लीटर वाला जग है वो खाली होना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रोडक्शन रूल बनाए। प्रोडक्शन रूल बनाने के बाद हमने सॉल्यूशन में उस तरीके के उन प्रोडक्शन रूलों को काम में लिया या वो प्रोडक्शन रूल्स काम में लिए जिनके थ्रू हम गोल अचीव कर सकते हैं। सम कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डिजायर्ड आउटपुट बाय pouring वाटर फ्रॉम ए जग टू द अदर। दीज कॉम्बिनेशंस आर नोन एज द प्रोडक्शन रूल्स, जैसा कि मैंने बताया था। दैट्स ऑल अबाउट द वाटर जग प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।